یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. وزیر اعظم نریندر مودی نے مدھیہ پردیش میں 12,600 کروڑ جبکہ جودھ پور راجستھان میں 5,000 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کو کیا قوم کے نام وقف. کپواڑہ میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہاتھوں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح. کہا پچھلے 2 برسوں کے دوران جموں کشمیر نے زندگی کے ہر ایک شعبے میں کی نمایاں پیش رفت حاصل. تمباکو نوشی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تمام متعلقین کے مابین باہمی اشتراک کی ضرورت پر ایل جی کے مشیر آر بھٹناگر کا زور. اور مردوں کے آئی سی سی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آج سے باضابطہ طور آغاز. احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں آج انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا مقابلہ. خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مدھیہ پردیش میں 12,600 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کا یا تو سنگ بنیاد رکھا یا قوم کے نام وقف کیا. انہوں نے اندور میں لائٹ ہاؤس پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. اس پروجیکٹ کی بدولت 1,000 کنبوں کو فائدہ ملے گا اور اسے پی ایم آواس یوجنا اربن کے تحت 128 کروڑ روپے لاگت سے مکمل کیا گیا ہے. دیگر پروجیکٹوں کا تعلق سڑک رابطوں، ریل رابطوں اور جل جیون مشن سے ہے. وزیر اعظم نے جودھ پور راجستھان میں آج مختلف سیکٹروں کے 5,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرتے ہوئے انہیں قوم کے نام وقف کیا. ان پروجیکٹوں میں ایمز جودھ پور میں 350 بستروں پر مشتمل ٹراما سینٹر اور کرٹیکل کیئر اسپتال بلاک، پردھان منتری آیوشمان بھارت ہیلتھ مشن کے تحت 7 کرٹیکل کیئر بلاک اور کئی دیگر پروجیکٹ شامل ہیں. وزیر اعظم نے جودھ پور ہوائی اڈے پر 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی نئی ٹرمینل بلڈنگ کا بھی سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے کئی ریل پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد 2 نئی ریل گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ بھی کیا. بعد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ راجستھان قدیم بھارت کی عظمت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے اور اس ریاست میں بہادری، ترقی اور کلچر کی عظیم روایات کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی وعدہ بند ہے. انہوں نے کہا کہ راجستھان کی ترقی میں پورے ملک کی ترقی کا راز مضمر ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ شروع کیے گئے پروجیکٹوں سے بنیادی ڈھانچے کو تقویت ملنے کے ساتھ ساتھ علاقائی اقتصادیات کو فروغ حاصل ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے. دنیاشنا وزیر اعظم نریندر مودی آج مدھیہ پردیش میں 12,600 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کا یا تو سنگ بنیاد رکھیں گے یا انہیں قوم کے نام وقف کریں گے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر آج پورے ملک میں کامیابی کی ایک نئی داستان رقم کر رہا ہے. کپواڑہ میں آج 26 کروڑ روپے لاگت والے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر نے پچھلے 2 برسوں کے دوران زندگی کے ہر ایک شعبے میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے جس کی بدولت لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ ایک مستحکم یوٹی بنانے میں مدد مل رہی ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے کپواڑہ کے ترقیاتی منظرنامے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں ترقیاتی عمل کو رفتار بخشنے کے لیے مختلف سیکٹروں کے 3,241 ترقیاتی کاموں کو رواں مالی سال کے دوران مکمل کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے مالی برس کے دوران ضلع میں 2,444 ترقیاتی کام مکمل کیے گئے. انہوں نے کہا کہ خاص طور سے انتظامیہ نے سیاحتی سیکٹر کو دوام بخشنے کے لیے اختراعی اقدامات کیے تاکہ خطے کی اقتصادی اور سماجی ترقی کو ممکن بنایا جا سکے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں. انہوں نے کہا کہ ایل او سی کے نزدیک 19 پنچایتوں کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے 2021-22 کے دوران کیرن اور متسل کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی گرڈ کنیکٹیوٹی وجود میں لائی گئی. منوج سنہا نے کہا کہ اس وقت کپواڑہ میں 3,144 کروڑ روپے لاگت کے 20 بڑے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر کام سرعت سے جاری ہے. ساتھیوں، کپواڑہ کی اس مقدس مٹی میں ویرتا، شوریہ، دیش بھکتی اور لوکتنتر کے پرتی آستھا ایسے ہزاروں اداہرن بکھرے پڑے ہیں اور مجھے گرو ہے کہ آج ان کی وراثت کو سنوارنے میں ہم سبھی لوگ مل کر کے جی جان سے جٹے ہوئے. میں نجی طور پر اپنا رشتہ کپواڑہ سے گہرا مانتا ہوں. جب سے جموں کشمیر کا کاروبار مجھے ملا تب سے لے کر اور آج تک ادھیاتم، پراکرتک سوندریہ، سوہارد اور محبت کی اس مٹی سے میرا سمپرک نرنتر بنا ہوا ہے. اوپر والے کا کرشمہ دیکھیے کہ آزادی کے 73 سال بعد مچھیل اور کیرن میں ہزاروں پریواروں کی زندگی میں اجالا بھرنے کی ذمہ داری بھی ہم ہی لوگوں کو اٹھانی پڑی. اسی ورष جولائی میں ورچوئل مادھیم سے ہی صحیح آپ سبھی کا درشن کر کے 33 سال بعد سنیما ہال شروع کرنے کا اوسر بھی مجھے ہی ملا. اگست میں مجھے دوبارہ ہندواڑہ آنے کا موقع آپ لوگوں نے دیا. ملٹی پرپز
नीरज स्पोर्ट्स हॉल युवाओं के बेहतरीन भविष्य को बनाने के लिए सौंपा गया और उसी दिन विलगाम आरामपुरा में ग्रिड सब स्टेशन का भी लोकार्पण किया गया था तथा कुपवाड़ा के सर्वांगीण विकास के लिए 32 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट आम जनता को समर्पित किए गए। एलजी ने इन प्रोजेक्टों को मुस्तकबिल की तरक्की के लिए कलीदी नौयत का करार देते हुए कहा कि इन प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने से जिले की आबादी की राहत रसानी होगी और जिले में तैयार होने वाली अशिया को मकामी सतह पर मार्केट दस्तयाब होगा और कारखानादारी को भी फरोग हासिल होगा। इस मौके पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदौरी और मुख्तलिफ महकमों के कई आला अफसरों के अलावा काफी तादाद में आम लोग भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज बैंक्वेट हॉल श्रीनगर में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से तंबाकू नोशी के खिलाफ किए जा रहे इकदाम से मुतल्लिक एक मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। वर्कशॉप के दौरान इस बिद्दत के खिलाफ बेदारी पैदा करने के साथ साथ इस अमल में मीडिया को शामिल करने से मुतल्लिक अमूर पर गौर खौज किया गया। वर्कशॉप से खिताब करते हुए मुशीर मौसूफ ने कहा कि समाज पर तंबाकू नोशी के असरात पर काबू पाने के लिए तमाम मुतलकीन में बाहमी तालमेल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस बिद्दत के खिलाफ हर सतह पर संजीदा इकदाम किए जाने चाहिए। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत और तिब्बी तालीम भूपिंदर कुमार और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राथिर भी मौजूद थे। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सन्नत मुस्तकबिल में स्टार्टअप यूनिटों और टेक्नोलॉजी पर मबनी दीगर इख्तिराई इकदामात को बढ़ावा देने में कलीदी रोल अदा करेंगी। आज नई दिल्ली में एसोचैम की तरफ से मुनक्किद किए गए तीसरे इंडिया क्वांटम टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2023 के दौरान कलीदी खुतबा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर नताइज की हसूलियाबी के लिए सरकार तालीमदानों और सन्नतकारों को एक मसावी रोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि आलमी सतह के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए सन्नतों को आगे आना चाहिए। सिक्किल डेवलपमेंट महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत निशानदेही किए गए 85,000 नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत से मुत्तलिक अमूर का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो दीगर महकमों के साथ बाहमी इश्तराक के साथ काम करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हुनरों में इजाफा करें और उनके लिए रोजगार के मौक़ों को तक़वियत बख्शें। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नरों से कहा कि वो हर माह डिस्ट्रिक्ट सिक्किल कमेटी मीटिंगों का एहतमाम करें ताकि विश्वकर्मा, जल मित्र और पीएम कौशल जैसी नई स्कीमों के मंसूबों की अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो आगे आकर अपने आप को आला मयार के हुनरों से रोशनास कराएं ताकि उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। बारामूला की जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शीरी का दौरा करके वहां मरीजों को सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले पर जोर दिया कि वो तनदेही और लगन के साथ काम करके मरीजों को आला मयार के लिए सहूलियात की बहम कराएं। उन्होंने बाद में आईटीआई बारामूला का भी दौरा किया और वहां जारी हुनरबंदी के प्रोग्रामों का जायजा लिया। डीसी बडगाम अक्षय लाबरू ने आज पीएचसी पहरू का दौरा करके वहां बुनियादी ढांचे की सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएचसी की नई इमारत में मकामी आबादी को तशखीस और इलाज की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया लोगों को मयारी सहूलियात दस्तियाब कराने की वादाबंद है और इस जिम्मे में मंजूर शुदा प्रोजेक्टों को भी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि लोग इस्तेफादा कर सकें। इस मौके पर मकामी लोगों का मसाइल भी सुने और यकीन दिलाया गया कि इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। चीन में जारी एशियन गेम्स में हांगझू में भारत को तमगे मिलने का सिलसिला जारी है। आज 12वें दिन मुल्क को सोने के 2 तमगे हासिल हुए। इसके साथ ही मजमूई तमगों की तादाद 83 हो गई है, जिसमें 20 तिलाई तमगे, 31 चांदी और 32 कांसे के शामिल हैं। तमगों की फहरिस्त में भारत फिलहाल चौथे मकाम पर है। एशियाई खेलों में ये भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। तीरंदाजी में आज भारत ने ख्वातीन के कंपाउंड मुकाबले में भारत ने सोने का तमगा हासिल किया है। फाइनल में भारत की 3 खिलाड़ियों अदिति स्वामी, ज्योति वैनम और प्रणीत कौर पर मुश्तमिल टीम ने चीनी ताइपे को शिकस्त दी। स्क्वाश फाइनल में दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल सिंह की आला सीड याफ्ता जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी को 2-0 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया।
इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एशियाई खेलों के स्क्वाश मिक्स डबल्स में सोने का तमगा हासिल करने के लिए दीपिका पालिकल और सिंधु हरिंदर को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में एलजी ने कहा कि इन खिलाड़ियों की बेमिसाल कारकर्दगी से पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा हुआ है। मर्दों का आईसीसी वनडे क्रिकेट आलमी कप 2023 आज से गुजरात में शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पिछले आलमी कप में दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी और इंग्लैंड दिफाई चैंपियन है। भारत अपना पहला मैच इतवार को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। अहमदाबाद में आलमी कप के 5 मैच खेले जाएंगे, जिनमें इस माह की 14 तारीख को भारत पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला और आइंदा महीने की 19 तारीख को आलमी कप का फाइनल शामिल है। सिक्किम में अचानक आए सैलाब के सबब हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है, जबकि तकरीबन 102 अफराद के लापता होने की खबर है। कल लाचन वादी में तीस्ता दरिया के पास लोहनाक झील पर बादल फटने के बाद अचानक सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी। तलाश कार्रवाई जारी है। एनडीआरएफ की 3 टीमों को इसके लिए तैनात किया गया है। गुवाहाटी और पटना से 2 और टीमें सिक्किम जाने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग से बात की और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आजम ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया और इस कुदरती आफत के सबब मुतासर अफराद की सलामती के लिए प्रार्थना की। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ जबकि जोधपुर राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। कुपवाड़ा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। कहा, पिछले 2-1 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर ने जिंदगी के हर एक शोबे में की नुमाया पेशरफ्त हासिल। तंबाकू नोशी के असरात को कम करने के लिए तमाम मुतनकीन के माबैन बाहमी इश्तराक की जरूरत पर एलजी के मुशीर आर भटनागर का जोर। और मर्दों के आईसीसी आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से बाज़ाब्ता तौर आगाज। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मुकाबला। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।